Here we have to prove that the volume of largest cone that inscribed in a sphere. This is the cone which is inscribed in a sphere of radius r. Radius of this sphere is r. This will be also radius. This is radius. Is 8 upon 27 of the volume of sphere. If the volume of this cone is maximum, then that will be 8 upon 27 of volume of sphere. We have to prove. Here we assume that the radius of this cone is x and the height is y. This height is y from here to here. यहाँ से यहाँ तक ये height y हो जाएगी. This point will be O center. So the same thing I write here. O be the center of sphere and R, capital R be the radius of that sphere, and cone of radius x and height y is inscribed in the sphere. That is BM. This BM is radius is equal to x and AM is height is equal to y. Now in right triangle, this is the OMB. In right triangle OMB. If you use Pythagoras theorem, then what we have, OM square plus BM square is equal to OB square. OM is this and this is what y minus r. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y है, इसमें से r माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा. Means this will be what y minus capital R whole square plus BM is x square is equal to OB is capital R square open by a minus b whole square. So a square minus 2ab plus b square plus x square is equal to r square. R square cancel. From here you get x square is equal to, ये तो ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2ry, ये तो ट्रांसपोज जाएगा तो नेगेटिव होगा माइनस y स्क्वायर. Now this is about the dimension of cone. Now we have to maximize the volume. So volume of cone, we know that it is 1 by 3 pi r square. R is here x square y. So if we remove this x square by this, then this will be the function of y. So 1 upon 3 pi x square is what 2 capital R y minus y square into y using first. इसमें से कांस्टेंट देख लेते हैं. पाई अपॉन 3 इज कांस्टेंट ओनली. इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r y स्क्वायर माइनस y क्यूब. नाउ if you will find out the derivative of this, so it is pi by 3 constant, it is 2 to the 4 ry minus 3 y square and डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 एज इट इज रहेगा 4ry, इसका हो जाएगा 4r माइनस 3 to 6y. 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 पाई बाई 3, यहां से रहेगा 2r माइनस 3y. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे. v डैश y इज इक्वल टू 0. फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये था 2ry स्क्वायर माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 0. टेकिंग y कॉमन तो इट इज 2r माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मीन्स y इज इक्वल टू 0 और 2r minus y square is equal to 0. This implies
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r. तो so the first derivative is what? 4ry minus 3y square is equal to 0. ये तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा. y कॉमन, इट इज 4r minus 3y is equal to 0. So either y is equal to 0 or 4y minus 3y is equal to 0. This implies 3y is equal to 4r, means y is equal to 4r upon 3 will be our critical point. We will find out double derivative at this critical point. 4r by 3. So what we get? Double derivative 2 pi by 3, 2r minus 3y, and y is this. So 3 into 4r by 3. 3 cancel, it is 2r minus 4r minus 2r, and this minus and plus, so minus 4 pi r by 3, and which is less than 0, means by second order derivative test this means y is equal to 4r upon 3 is point of maxima. If it is point of maxima, then we will find out the volume of. So the maximum volume of cone is what? Maximum. So maximum volume of cone B is equal to, here we will put the value of y, that is 4r upon 3. So ये pi by 3 as it is, 2r into 4r by 3 whole square minus 4r by 3 whole cube. यहाँ से 4 by 3 r ये कांस्टेंट है, इसको हम जो है कॉमन ले लें, तो पाई, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 जा 32 r क्यूब स्क्वायर और दिस अपॉन 3 माइनस ये 4 4 जा 16, 4 जा 64 एंड दिस इज 3 3 जा 9 3 जा 27 r क्यूब. ये पाई r क्यूब, यहाँ से भी और भी चीज़ कॉमन हो जाएगी, 16 कॉमन हो जाएगा, या 32 कॉमन हो जाएगा. 32 दोनों में से r क्यूब, पाई ऑलरेडी था यहाँ, r क्यूब कॉमन है और डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन है, तो 3 ऑलरेडी था, तो 3 3 जा 9, क्या रिमेन रहेगा 32. यहाँ से r क्यूब भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है 1, माइनस 32 कॉमन 2, 9 कॉमन, so 9 3 जा, and r cube, this is also common. Yes, we have two mistake here. 3 3 जा 9, it is 9. वापस इस स्टेप को कर देते हैं. तो ये पाई अपॉन 3 ऑलरेडी था, यहाँ से 32 कॉमन हो जाएगा, 32 इज कॉमन एंड r क्यूब इज ऑल्सो कॉमन, फ्रॉम डिनोमिनेटर 9 इज कॉमन, तो 32 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, r क्यूब भी कॉमन है, जैसे ये भी 9 भी कॉमन है, यहाँ से 32 2 जा 64, r क्यूब इज कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं अपन, तो 9 3 जा 27. तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 2 1, तो 1 by 3 होगा यहाँ से, तो
ये 32, यहाँ पे 32 ऑलरेडी था, 32 अपॉन 9 3 जा 27 और पाई आर क्यूब इंटू 1/3। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमें करना था 8/27 प्रूव करना था, तो 8/27 इसमें से निकाल लेते हैं। तो 8 4 जा, यहाँ से 4 रहेगा अपॉन 3 है और पाई आर क्यूब, एंड दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/23 ऑफ वॉल्यूम ऑफ sphere. Okay. Question number 24. Show that the right circular cone of least curved surface area, means we have to minimize the curved surface area of given volume. Volume is constant here. And altitude is equal to √2 times of the radius of base. Altitude जो है वो √2 time of radius of base होगा if it is of least curved surface area. So what is given? First of all, we will assume that x be the radius and y be the height of cone. So it is given volume given volume of cone v is equal to 1/3 pi x square y. X is radius and y is height. So this implies what we have, x square y will be what, 3v upon pi. This is 3v upon pi, and this 3v upon pi is constant, so we will take it as a k. कैलकुलेशन में बार बार लिखने की बजाय इसको ऐसा लिख लें। इसका मतलब हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन वाई। x स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन वाई। Now we have to minimize the curved surface area. Curved surface area of cone it is pi r l, means pi radius is x and l. We know that relationship between slant height and radius. Slant height will be what, r square plus h square. H is what, y square. L square it is. So L will be what, root of x square. ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ ये। So what we have, s is equal to pi x and it is root of x square plus y square. The value of x square is k upon y. We will put here. So pi x, x square is k upon y, so it is k upon y plus y square using first. Now this function is in term of y, so we will take it as a function of y, s. Now see, it is in square root. It is quite difficult to find out the derivative of square root. So what we do, we just squaring both sides. So what we have, s square is equal to s square is equal to what, pi square x square, and this is k upon y plus y square. If s is minimum, then s square will be also minimum. मीन्स हमने क्या किया, इसको एक न्यू फंक्शन बना दिया एफ वाई। ये न्यू फंक्शन हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड के अपॉन वाई। एक्स स्क्वायर भी आपका, एक्स स्क्वायर को भी हम रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर को भी यहाँ रिप्लेस कर देंगे के बाई वाई से। ये पहले रिप्लेस कर लेना था, यहाँ भूल गए तो के यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं इसको। अब फाइनली हमारे पास है क्या, पाई स्क्वायर के, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो ये हो जाता है के अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। दिस इज एफ वाई, एफ डैश वाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर के, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब, ये के कांस्टेंट था, प्लस वाई का 1 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं, एफ वाई का डबल डेरिवेटिव, तो ये पाई स्क्वायर के, इसका करेंगे क्यूब, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन वाई रेस टू द पावर 4, तो -3, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6k वाई रेस टू द पावर 4 और 1 का 0, मीन्स ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन वाई रेस टू द पावर 4 डबल डेरिवेटिव। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रहेगा तो क्या होगा, ये वाला -2k अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स यहां से हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 2k, दिस इम्प्लाई वाई इज इक्वल टू 2k का क्यूब रूट, सी। नाउ डबल डेरिवेटिव इस पे चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पे, एट व्हाट 2k रेस टू द पावर 1/3। देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2k रेस टू द पावर 4/3। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सारी चीजें क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, क्या y इज इक्वल टू दिस, तो बाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, y इज इक्वल टू 2k रेस टू द पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, तो हमें यहाँ हाइट और रेडियस में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट से हमने क्या रखा था, x स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन वाई, ये फर्स्ट रिलेशन था, तो इसमें k अपॉन वाई की वैल्यू हम रखेंगे, तो ये होगा 2k रेस टू द पावर 1/3, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2k अपॉन 2k रेस टू द पावर 1/3 इंटू 2, तो ये 2k की पावर 1 है और ये 2k की पावर 1/3 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 माइनस 1/3, इट इज 2k रेस टू द पावर 1 माइनस 1/3 इज 2/3 अपॉन 2, एंड 2k रेस टू द पावर 2/3 1/3 इज व्हाट y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। देखिए इसका यूज कर दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई यूजिंग सेकेंड अपॉन 2 यूजिंग सेकेंड। ठीक है, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2x, y इज व्हाट हाइट is equal to √2 time of what radius of base, hence we prove that hence CSA is minimum when height is equal to √2 time of radius। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो